टीवी चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से कराते हैं आपको रूबरू, दिखाते हैं आपके ज़िले और शहर की भी खबर। तो चलिए देखते हैं आज की ताज़ा खबर, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें आर भारत टीवी चैनल। Honorable Chief Guest and respected all my dear teachers and all my dear students. Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. I am really glad it's my honorable and I feel so great to be here, and I'm here to share with you few beautiful words or some point about the women's power. First, let me talk about the 5th December. September 5, why do we celebrate? We celebrate as a Teacher's Day. So we know everyone. So do you know everyone? Yes. So we celebrate as a Teacher's Day. You know very well Dr. Radhakrishnan. So you know very well that person. He was the Vice President of our country. So he was a philosopher. You know philosopher. He was a philosopher and he was a politician, and as well as he was a good man. So one day what happened in the year of, I remember, 1862, he was Vice President of the India. He was staying at the home. One of the students came to meet him. So he asked him, "Sir, can we make something special on this day?" On this day means I mean to say 5 this day. So Dr. Radhakrishnan said, "Yeah, as you wish, we can make this day as a beautiful." So they decided to celebrate this day as a Teacher's Day. So all my dear students, I request you always keep in mind that in the year of 1862 we started to celebrate Teacher's Day. So this is about the Teacher's Day, and let me talk about some point about the women's power. Everyone know, I would say like just a few words. Okay, you know, women's are the source of everything. Women are the source of everything, and they are the key to every lock. They are the key to every lock. If you don't have in a lady in your house, the house will be completely scattered. Scattered means the children, they may not grow well. Without mom or without the mother, the house is like an empty vessel. Do you understand empty vessels? It's like a nothing. So you have a woman, or if you have a mother in your house, they obviously take care of you, and they will correct you, they will suggest you, and the mother always help you in every single activity. Not the dad. Dad is always, the father is always busy with the income. And some point like I would like to say, women, they are the primary take care of in every elder, children, even the older also. In every country, not only in Bihar, or not only in Odisha, not only in Kerala, not only in Delhi. Wherever you go, wherever in the world, everywhere in the all the universal, you will find the women. If there is no women, there is nothing. That's why in short sentence, in one sentence I said, the women are the source of everything. So I hope everyone understood my speech in this speech, and thank you so much all of you for listening my speech. Thank you to all. गुड मॉर्निंग। मैं आपको नारी शक्ति पर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। नारी है नाम मान का, नारी है सबके सम्मान का, नारी क्या है रूप अनेक, कभी लक्ष्मी बनकर धन बरसाए, कभी सरस्वती बनकर ज्ञान की यमुना बहाए, कभी माँ पार्वती जैसी अर्धांगिनी बन जाए। नारी है नाम मान का, नारी है सबके सम्मान का। धन्यवाद। नारी शक्ति पूरी दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली है। वे अपनी शक्तियों से दुनिया को बदल सकती है। उनकी शक्ति उनके अंदर के गुण ही हैं। उनमें शांत, सरल स्वभाव, धैर्य और सहनशीलता जैसी बहुत से गुण हैं। नारी शक्ति, नारी अपने ये सिमोनी सिंह है, ये मेरी बेटी है, ग्राम पखनैया है। 3 लड़की है और एक लड़का है। लड़की का क्वालिफिकेशन
और वेकेशन एगो है 6 में, एगो 3 में, और लड़का है जो 1 में है, 1 में। आप क्या करते हैं? हम गृहस्थी करते हैं। थोड़ा सा बड़ा करता है। बीच में राजलक्ष्मी मैम हैं और वो सरपंच विकास पदाधिकारी के पोस्ट के लिए पोस्ट पे हैं, लेकिन अभी उनका चयन नहीं हुआ है किसी जगह पे। और हमारे प्रिंसिपल मैम यहाँ पे उपस्थित हैं, तो जो कि हमारे मुख्य अतिथि को सम्मानित करेंगे। बिल्कुल। यहाँ पर जितनी भी नारी लोग हैं, ये ना सोचे कि हम कम हैं, क्योंकि आज आप लोग इक्वालिटी के बराबर हैं। आप लोग को इक्वालिटी है, 50% के अधिकार है। सो आप लोग भी कुछ बोल सकते हो, आप लोग भी सब कुछ कर सकते हो। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज 5 सितंबर भी है, टीचर्स डे के रूप में भी जाना जाता है। टीचर्स डे जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, उनकी याद में मनाया जाता है। ये चीजें हम लोग को हमेशा याद रखने की, हम सब लोगों को हमेशा उत्साह करती है कि किस प्रकार से हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए लोगों ने कार्य किया। तो जब जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, जो कुछ भी हम लोग सीखते हैं, उस चीजों को हमें कौन सिखाता है? टीचर। जैसे कि कहा जाता है कि बचपन में हमें सिखाने वाले हमारे माँ बाप होते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हमारे टीचर्स आते हैं, गुरु आते हैं। सो हमें उनके सम्मान के लिए अगर आज फ्यू वर्ड बोलने हैं तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उसमें हम गलतियों को सुधार करके और आगे बढ़ें, यही चीजें हमें सीखने के लिए मिलता है। जय हिंद, जय भारत। आज का दिन शिक्षक दिवस भी है। शिक्षक दिवस इस तिथि को निर्धारित किया गया हमारे देश के आज़ादी के बाद। सेकेंड जो राष्ट्रपति राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति हुए, वो राष्ट्रपति का आज ही के दिन अर्थात 5 सितंबर के दिन उनका जन्म हुआ था। उसी जन्म के दिन के अवसर पर उनकी यादगारी में लोगों ने शिक्षक जितने प्रेम थे या देश के या प्रांत के या आपके ब्लॉक के, सभी लोगों ने मिलजुल कर इस तिथि को निर्धारित किया कि हम राधाकृष्णन के बर्थडे के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाएं। और आज हम शिक्षक दिवस उसी तिथि अर्थात 5 सितंबर को मनाते आ रहे हैं। शिक्षक दिवस यह आपको जागृत करता है। शिक्षक दिवस यह आपको यह देता है, आप अपनी भावनाओं को एकत्रित करते हुए, आप अपने शिक्षक टीम को एकत्रित करते हुए यह दिवस शिक्षक रूप के दिवस में मनाया जा रहा है। आज यही खूबी है कि सारा देश कि सभी शिक्षक इस तिथि को मनाते आ रहे हैं, आगे भी मनाते रहेंगे। इसमें राजलक्ष्मी मैम है, उनके द्वारा हम लोग पुरस्कार को देंगे। लेकिन आइए हमारे जो गेस्ट हैं उनसे हम आपको रूबरू करा देंगे एक बार फिर से। और दिशा में आगे बढ़ा रही है, जो हमारे बिहार सरकार और संयुक्त राष्ट्र का भी सपना है, जो 17 एजेंडों में से एक है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण का ये अर्थ होता है कि महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो सिर्फ होना चाहिए, यानी ऑन डिपेंड होना चाहिए, दूसरे पर नहीं निर्भर होना चाहिए। इसी को हम महिला सशक्तिकरण के नाम से जानते हैं। और आप लोगों ने इस क्षेत्र में अपना पहला कदम रख चुका है। जो अंजलि कुमारी जी हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ
और आपने उस क्षेत्र में ये पुरस्कार जीता है जो हमारे देश के वैसी परंपराएं जो भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है, इसका पुरस्कार आपने पाया है। और आपके लिए मैं मंगल कामना यही करती हूँ, हम सब यही मंगल कामना करते हैं, आप इसी तरह आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ ही ज्योति कुमारी विद्या कुमारी जी, आप लोगों के लिए भी मेरी यही हार्दिक इच्छा है और आप लोग भी कुछ वैसा करें जो आप प्रेरणा का स्रोत बने और आपके माता पिता भी प्रेरणा का स्रोत बने। और अपने से जितने भी छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी मैं मंगल कामना करती हूँ। और बच्चों, आपके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों में वो क्षमता है, वो लक्षण है, वैसे हर किसी में एक कोई न कोई विलक्षण होता है, लेकिन उसको शिक्षक क्या करते हैं, निखार कर बाहर लाते हैं, जो कि पहले हमें मालूम नहीं होती है कि हमारे अंदर गुण क्या है। लेकिन जब शिक्षक देखते हैं कि बच्चे में ये गुण है तो उसको बाहर लाते हैं और उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और दूसरी बात कि जो हमारे शिक्षक हैं, माता पिता हैं, शिक्षक हैं, उनके अलावा वो भी शिक्षक होते हैं, वो भी गुरु होते हैं जो हमें अच्छी सीख देते हैं। उनका भी सम्मान करना चाहिए, उनका भी आदर करना चाहिए, हर एक दूसरे का आदर करना चाहिए, या हमसे छोटे हो या बड़े हो या हमारे पेरेंट्स हो, कोई भी हो, सबका सम्मान करना चाहिए। और सम्मान करने वाला इंसान ही कहीं भी आगे बढ़ता है और वहीं कहीं भी पूजा जाता है और वहीं आदर के लायक होता है। Thanks each and every one of you that you came and you participate with us and you gave your precious time with us. Thanks everyone, and those who got that prize and they tried themselves. Thanks for them, because God bless them abundantly that they can improve in coming days. God bless you. Thank you.